attention, support, and your best wishes. Thank you again. So moving forward, we have among us Mr. Vikas Azawat, registered patent and trademark attorney, Government of India. He is practicing as an advocate and patent and trademark attorney, regularly dealing with patents, including PCT application, consultancy into foreign filing, trademarks, including convention application, designs, and copyrights. Mr. Vikas had been nominated to participate in the University of Washington Law School National Law University, Delhi, West Bengal National University of Judicial Sciences Innovations and Indian IP Teaching and Research Workshop 2013. In April 2013, he has been nominated for a 4-day residential course on how to engage in Indian broadband policy and regulatory processes at Bangalore, organized by Indian Journal of Law and Technology. Currently, he is also designated as patent expert in the panel of Institution Innovation Council, NIT, Raipur. He has delivered around 170 specialized lectures and training programs on intellectual property rights and cyber laws in various institutions and industrial associations. So without taking much of your time, I would like to invite Mr. Vikas Azawat to address the audience. Over to you, sir. Please. सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत सबको प्रणाम नमस्कार और मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर आर के गुप्ता सर जो सम्माननीय वाइस चांसलर सर हैं अपने महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी Gupta sir, Shreyas Gupta sir, who is a nominee, chancellor nominee in the Maharaja Agrasen University, and Dr. Mahajan ma'am, Dr. N. Mahajan ma'am, who is the director, holding the position of director in the MAIT, and I think I am also equally thankful to Dr. Kapil Bhatt also, who has been involved, I think, crucially involved in this organized seminar. HPU Shimla. From UIT, HP University Shimla. Yes, yes. So, जो आज का जो थीम आपको मुझे दिया गया है, तो बेसिकली आई वांट के जो भी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करें, जो भी इनोवेटर पार्टिसिपेट करते हैं, दे कैन कनेक्ट हाउ इनोवेशन कैन बी डन एंड हाउ दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स सो दैट और डिजाइंस सो दैट एटलीस्ट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ राइट्स विद देम. तो हमारा जो फोकस रहेगा कि एक तो नेचर ऑफ इनोवेशंस को समझना कि किस तरह के इनोवेशंस होते हैं, उनकी मेरिट्स कैसे डिसाइड की जाती है कि इनोवेशंस प्रोटेक्टेबल है या नहीं है, प्लस उसको किस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना होता है पेटेंट ऑफिस या डिजाइन ऑफिस को, ताकि सो दैट यू कैन एक्वायर द राइट. और उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अपना राइट प्रोटेक्ट तो करें, साथ में दूसरे के राइट को भी रेस्पेक्ट करें. ऐसा ना हो कि आप अपना पेटेंट डेवलप करने में किसी और का पेटेंट को इन्वॉल्व कर लें या अपने डिजाइन के लिए में किसी और की डिजाइन इन्वॉल्व करके फिर उस पे एक आर्टिफिशियल सा एक जिसको बोलते हैं एक सिंपल सा इनोवेशन करके अपने को प्रोटेक्ट कर ले उसके दूसरे के इनोवेशन पे. सो मेरा एक मैसेज ये भी कि इनोवेशन शुड बी इंडिपेंडेंट. ऐसा ना हो कि आप किसी को देख के थोड़ा सा माइनर वर्कशॉप अरेंजमेंट करके उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लें. तो वो जो थॉट प्रोसेस उसको भी हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा और हमें एक ग्रास रूट से इनोवेशन के लिए सोचना पड़ेगा. तो कुछ लेजिस्लेशंस भी हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्लेशंस भी हैं जो उसको गवर्न करते हैं, है ना. तो जो भी आप लोग इनोवेट कर रहे हैं, आप लोग जो भी इन्वेंशन लेके आ रहे हैं, जो भी आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, वो कैसे इकोसिस्टम में मैनेज फिट कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे. काफी सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझने की. बहुत ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल से जाएंगे, मैं ज्यादा आपको लेजिस्लेशन बताऊंगा, इट विल बी कंफ्यूजिंग. आई विल ट्राई टू कवर द सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. I think I have to share option is there. Yes, sir. Click the arrow At the top right corner. At the top right, click the arrow and share your presentation. Browse the computer. If it is on the desktop, you can upload it. One second. Ranjit sir, you can guide him. Ranjit sir, please guide him. I mean, now I think, is it visible, ma'am? Yes, sir. Visible. Yes, sir. It is Visible, visible. sir. Yes, sir. Should I make it full screen?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मैम फुल स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. Yes, it is visible. ओके No, sir. No, No. sir, not yet, sir. Full screen visible नहीं है, sir. 1 second. Full screen is visible, not full screen. But are you able to see the slides Yes, clearly? yes, 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 sir. Clearly? हाँ जी, we हाँ, तो can फिर read आगे- it. तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कैसे हो रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काफी सारे स्टूडेंट्स जो जहां पर मौजूद हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी सुना होगा, काफी थोड़ा बहुत फ्रेंड से सुना होगा, कुछ अपने फैकल्टी से सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग इसके देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपीआर आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो फर्स्ट तो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम लोग देखते हैं तो आईपीआर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी। One is the trademark, one is the design, one is the patent, and another is the copyright. So, 1 second. One second. So, basically, if you see, there are 4 types of IPR. One is the trademark, one is the design, one is the patent, and another is the copyright. So, जो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली इसी के अराउंड होगा, जो अपने 4 टाइप्स ऑफ आईपीआर के अराउंड ही होगा। ठीक है, अब आप देखिए, मैं पीछे शिफ्ट कर लूं क्या इसको एक बार सिस्टम को? Sir, no noise is coming from your side, sir. ओके, It is fine, sir. अच्छा फाइन, ओके। Fine. सो बेसिकली लेट मी शेयर द एग्जांपल। और मैम आप इफ यू कैन अलाउ 1 or 2 स्टूडेंट टू आंसर, आई विल बी ग्रेटफुल मैम। इफ यू कैन अलाउ 1 or 2 स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चंस so that it will be more interactive. Is it possible? Okay. Yes, sir, possible, sir. Please ma'am, please allow either 1 or 2 students, please. Hello. Students, you can ask the question, students. Students are okay. So, can any student answer what is in the screen? What is visible on the screen? Any participant can unmute and tell the answer. Student, please answer. Yes, sir. It's regarding the property and government system to recognize the property. Are you not able to see the screen, the water bottle? No, sir. Water No, bottle? sir. Sir, your slides are not moving, I guess. Okay. Now? No, sir, not yet. 1 second. Yes, sir. yes, change, sir. Yes, Yes, sir. now Yes, visible. sir. Now, Yes. Now it is bottle? Yes, Yes. yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. So, in brief, I can say it is a packaged drinking water, right? Yes, sir. Suppose now this packaged drinking water is available on the bus stand or the railway station or the airport or in the any grocery market or on any retail shop. आप में से कितने लोग इसको परचेज करना चाहेंगे इस कंडीशन में? अगर ये बोतल सेम बोतल अगर मार्केट में सेल आउट होती है तो कितने लोग आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे? कोई बता सकता है? आर यू इंटरेस्टेड टू बाय? I can't purchase. अरे बिकॉज आपको थोड़ा सा आपका एश्योरेंस नहीं है कि इसमें किस तरह का पानी है, क्लीन वाटर है नहीं है, प्यूरिफाइड वाटर है नहीं है, यू आर नॉट एश्योर हो। बट नाउ Yes, sir. now you will purchase it? Definitely. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Means आपने क्या देखा? आपने न तो पानी टेस्ट किया, आपने पानी भी टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं, आपने केवल एक लेबल देखा सर। On the basis of this label, you have decided your purchasing decision. You are taking purchasing decision. तो क्या decisive factor क्या है यहाँ पर बताएंगे आप परचेज करने के लिए? Branding or brand name. Right. Means the word Bisleri is the decisive factor. Bisleri और Aquafina और whatever it is, है ना, जो भी इसका बहुत तरह के पानी आते हैं आजकल, है ना, इक्वल करके भी एक मिनरल वाटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है। तो
it means the particular word Bisleri has some sort of value, because आपने बिस्लरी पढ़ के इसको परचेज कर लिया है। तो जो कंपनी बिस्लरी ट्रेडमार्क को ओन करती है उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, ओके। बिकॉज ये जैसे आई टाइप दिस लेबल टू द बॉटल, यू आर एबल टू परचेज this water. So this is a unique property which belongs to a particular company, that is Bisleri Incorporation, okay, or PepsiCo, whatever the company name is. अब नाउ सी, अब क्या होता है, अब आपको स्लाइड दिख रही है आपको? Yes, sir. अब यहाँ पर स्लाइड में क्या दिख रहा है आपको? Sir, two bottles with different name, Bilseri and Bisleri. Different name or similar name? Sir, different names. नहीं, but are they similar? Are they very Yes, sir, similar? looking similar, Yes, but similar. the spelling of that word is different. बट जो डिफरेंस है वो इतना माइनर है कि एक सिंपल पर्सन जो है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है Yeah, या it's ज्यादा not उसका easily अरे recognizable वो from अरे distance. वो ज्यादा अवेयर नहीं है सिचुएशन से, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफरेंशिएट करना, राइट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सो अगर मैं, इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी विद द नेम बिस्लेरी एज अ ट्रेडमार्क माय प्रॉपर्टी, देन क्या मुझे बिल्सेरी को ब्रिस्लेरी को अलाउ करना चाहिए, वो भी मार्केट में अपना पानी लॉन्च कर सकें? शुड आई अलाउ इट एज अ ओनर ऑफ बिस्लेरी? No, sir. क्या दिक्कत है? उनका तो स्पेलिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट है ना, क्या दिक्कत है? चल सकता है। कोई आर्गुमेंट देंगे प्लीज? हेलो, Take please. Just Sir, sir, because it look like similar and it confuse people राइट, यू आर at the राइट, time of buying. very perfect answer, because it can create confusion among the prospecting buyers or purchaser, जो potential buyers हैं उसमें confusion create कर सकता है। और सीधा लॉस किसको होगा? who will bear the loss? बिस्लेरी, because आपने तो पैसा बिस्लेरी के उसमें दिया है, बिस्लेरी समझ के, है ना, इन लियो बिस्लेरी, और आपको हम क्या मिला? बेल्सी मिल रहा है, बिल्सेरी मिल रहा है, बिस्लेरी मिल रहा है। और दूसरी उससे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? हो सकता है पानी का जो क्वालिटी हो वो डेट्यूरेटेड हो, अप टू द मार्क ना हो, एक स्टैंडर्ड वाटर ना हो। तो फिर आप किसको क्रिटिसाइज करेंगे? बिस्लेरी कंपनी को, क्योंकि आपने तो लोगो ढंग से देखा भी नहीं। तो ये सिचुएशन ट्रेडमार्क सिचुएशन कहलाती है, जहां पर एक ओनर ट्रेडमार्क का है, उसके कुछ राइट्स हैं, और जो लुक अलाइक ट्रेडमार्क यूज करता है वो दे आर डूइंग एज अ क्राइम, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस टू कॉपी अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो मेरे को ये 2-3 स्लाइड आपको ट्रेडमार्क की इसलिए दिखानी थी ताकि आप समझ सकें कि ट्रेडमार्क क्या है और उसके रेमिफिकेशंस क्या है, उसके आउटकम्स क्या है। तो अगर कोई ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड है ऑलरेडी और कोई सिमिलर नेम कोई यूज करता है, तो ही इज डूइंग द क्रिमिनल ऑफेंस। ये आप पे भी लागू होता है। कई बार आप क्या करते हैं, अरे रिलायंस तो ऑलरेडी है, मैं क्या करता हूँ, रिलायंस प्लस खोल देता हूँ, मैं अपना एक स्टोर खोलता हूँ हिमाचल में रिलायंस प्लस के नाम से, या सोनीपत में रिलायंस स्टार के नाम से एक स्टोर खोल लेता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल होंगे। तो व्हाट पीपल विल थिंक इट्स अ स्टोर ऑफ रिलायंस, और जब रिलायंस कंपनी को पता चलेगा तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। तो ट्रेडमार्क में एक हल्का सा ये भी एक इनोवेशन पार्ट है कि जो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं या ट्रेडमार्क, वो भी आपका इनोवेशन होता है। और कुछ लोग इतने स्पेसिफिक नाम लेके आते हैं दैट द नेम बिकम्स इनोवेटिव, लाइक लेक्मे इज इनोवेटिव नेम, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उन्होंने अपने आप को इस वर्ड को डेवलप किया, ठीक है। इस तरह काफी से नोकिया है, कुछ स्पेशल नेम है, सैमसंग। तो व्हाट एवर जी, वो कह रहा था इसमें। Participants, excuse kindly me, mute sir. yourself. अनम्यूट, हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो बेसिक Excuse me, sir. जी, So I have queries. Sir, there are 3 terms: trademark, copyright, or patent. So Right. can you state the difference between in 3 terms? वो अभी मैं केवल ट्रेडमार्क में उस पे पेटेंट और कॉपीराइट पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, Okay, sir. तो आई विल कम टू दैट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रेडमार्क मींस बेसिकली एक सिंबल है जो आपकी कोई गुड्स या सर्विस पे हम लोग एम्बोस कर सके ताकि कस्टमर आइडेंटिफाई कर लेता है।
जैसे कि एक में सिंपल नाइकी का सिंबल जो राइट सिंबल है, if you see the right symbol you can identify it's a Nike product. Okay, if you see the M symbol you can identify it's a McDonald's pizza. So any symbol, any text which or any logo which can identify any product or service is a trademark related to commercial, because आपका जो पानी है वो भी मार्केट में सेल आउट हो रहा है, ठीक है। आपका जो आप लोग जो सॉफ्टवेयर सर्विस लेते हो या फिर एक आपके एजुकेशन सर्विस है वो भी आपकी बेसिकली वो भी आप उसकी भी कुछ फीस चार्ज करके हम लोग स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, यहाँ पे आप टीचिंग ले सकते हैं। तो जो भी चीजें ट्रेड या सर्विसेज में काम आती है, जो भी लोगो या टेक्स्ट, उनको ट्रेडमार्क जनरली हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझने का। तो आप लोग खुद भी किसी का ट्रेडमार्क कॉपी ना करें, और अगर कोई थर्ड पर्सन आपका ट्रेडमार्क कॉपी करता है तो यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर। ओके, अब ये देखिए, आप एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने मोनेको बिस्किट खाया होगा, ठीक है ना, या किसी ने हाइड एंड सीक खाया होगा। तो ये काफी रिनाउंड बिस्किट है फ्रॉम द पार्ले ग्रुप। अब क्या हुआ, एक कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर, इन्होंने क्या किया, इफ यू सी द स्लाइड, मोनेको इन्होंने कर दिया क्रैको, और you can see the packaging, both are in yellow color and round shaped biscuit. Here is hide and seek, then hide and seek is here, peek-a-boo, seek and peek. So similar name with the same biscuit shape and the same packaging style. Okay, and if you say that Crackjack and Cracker King, so Crackjack is Parle and Cracker King is from the this future consumer. So यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ सिमिलरिटी लग रही है? एनी स्टूडेंट कैन आंसर? इनमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है आपको पैकेजिंग स्टाइल में? Yes sir, they have used the same, is nearly similar color palette. हाँ राइट, यहाँ पर नेम तो ही से नेम तो फिर भी थोड़ा डिफर है, क्योंकि मोनेको एंड क्रेको आर डिफरेंट वर्ड, बट द ओवरऑल पैकेजिंग स्टाइल इज सच ए वे दैट जो एवरेज कस्टमर होता है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, वेदर कलर कॉम्बिनेशन, वेदर नेम, वेदर लोगो, वेदर सिंबल, जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है, वो ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आ सकता है। प्लस और एनीवन हु इज कॉपिंग द सिमिलर पैटर्न मे फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट, ये क्योंकि पार्ले ग्रुप बड़ा ग्रुप है, इनका हेड ऑफिस मुंबई में, तो इन्होंने वहीं पर केस किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है और बोला है कि फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड क्रैको या पीक एंड बू या फिर ये क्रैकर किंग, इसको इस पर्टिकुलर पैकेजिंग स्टाइल में सेल आउट नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो कोर्ट आपके अगेंस्ट ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि यू डोंट फॉल इनटू द एरिया ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। आपको किसी का कॉपी नहीं करना, आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट करना है, आपको अपना यूनिक पैकेजिंग स्टाइल डेवलप करना होगा। फिर एक लास्ट एग्जांपल है ट्रेडमार्क का, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, डेटॉल वर्सेस डेवटॉल। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सिमिलरिटी है और नियर अबाउट ऑलमोस्ट एक काफी कुछ कंफ्यूजन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि डेवटॉल कंपनी जो डेवटॉल जो ब्रांड है, जो दूसरी कंपनी मोहित फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो उसको जो डेवलप कर रहा था डेवटॉल का प्रोडक्ट, उसको बोला है कि आप यू कैन नॉट यूज दिस मार्क बिकॉज इट इज सिमिलर टू डेटॉल। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करें तो डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, अदरवाइज देयर आर क्रिमिनल रेमेडीज, देयर आर पुलिस रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करने वाले हैं इन फ्यूचर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यू आर नॉट कॉपिंग सम अदर प्रोडक्ट। थोड़ा आप इनोवेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे नॉन थे, उनकी मदर का नाम था सरला और उनके फादर का नाम था पुरुषोत्तम। तो उन्होंने अपना ट्रेडमार्क बना दिया सरलोत्तम, तो सरला और पुरुषोत्तम तो सरलोत्तम बना दिया। तो इस तरह से भी आप नए नए ट्रेडमार्क इनोवेट कर सकते हैं ताकि वो किससे मिलता जुलता भी ना हो, डिफरेंट भी बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि कैसे न्यू नेम लेके आना है ताकि वो किसी से मिलता जुलता भी ना हो और यूनिक भी हो जाए। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। फिर कॉपीराइट्स, अपन नेक्स्ट उस पर आते हैं कॉपीराइट्स पे। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी कुछ एक आर्टिकल लिखा आपने अबाउट द ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कुछ पोएम्स लिखी, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ पोएम्स, कुछ लोगों को गाने का शौक होता है तो लिरिक्स वगैरह लिखते अपने, ठीक है। तो कुछ लोग म्यूजिशियन भी होते हैं, कुछ लोग शूटिंग्स करने के लिए कैमरा भी यूज करते हैं, आजकल डिफरेंट लोकेशन की यूनिक फोटोग्राफ्स लेते हैं।
तो इस तरह के जो भी वर्क होते हैं, जो लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक, कुछ लोग पेंटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग स्कल्पचर भी तैयार करते हैं, तो इस तरह का जो भी वर्क होता है वो आता है आपको कॉपीराइट, जिसमें कुछ एक्सप्रेशन होता है, जिसमें कुछ लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, तो वो आता है आपको कॉपीराइट। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जो भी आप कॉपीराइट करवाना है आपको, उसको आपको कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा। आप अपने माइंड में वो चीज नहीं रख सकते कि साहब मैंने ये चीज डेवलप करी है मेरे माइंड में, नो, यू हैव टू फिक्स इट ऑन सम मीडियम। आपको कहीं पेपर पे लिखना पड़ेगा, लैपटॉप पे वर्ड फाइल पे बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उस चीज को कॉपीराइट करा सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, कॉपीराइट इज ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ी हो, आपने इंजीनियर केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ जो आते हैं, काफी सारे ऑथर्स अपने अपने हिसाब से न्यूटन्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन लगभग सिमिलर होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो कॉपीराइट किस पे होगा, हाउ यू एक्सप्रेस द टर्म्स, उस टर्म पे वो नहीं है, आप कैसे उसको लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको कोई, आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम बीटेक का या जो भी आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो भी एग्जाम होता है, उसमें जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, तो सब लोग अपना अपना आंसर लिखते हैं, तो बहुत सारे आंसर आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन उनका थोड़ा हल्का लैंग्वेज चेंज होगा सबका, कोई पैसिव वॉइस में लिखेगा, कोई एक्टिव वॉइस में लिखेगा, किसी का वर्डिंग का फॉर्मेट क्या होगा। तो कॉपीराइट इज ऑलवेज ऑन एक्सप्रेशन, आइडिया पे कोई कॉपीराइट नहीं होता। तो अगर आप हिंदी मूवीज देखते हैं, कभी आपने देखी होगी, तो काफी सारी मूवीज में आपको स्टोरी वो सिमिलर लगती है आपको, आप देखते हो सर ये तो उस पर्टिकुलर मूवी में भी सेम स्टोरी थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, उसके लिरिक्स, गानों के लिरिक्स डिफरेंट होंगे, उनकी शूटिंग लोकेशन डिफरेंट होगी, उनके स्टार्स के कॉस्ट्यूम्स अलग होंगे, उनके डायलॉग्स अलग होंगे, ठीक है, तो उनका म्यूजिक अलग होगा। तो इसलिए कहते हैं कॉपीराइट इज ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया। मैं भी चाहूं तो हिमाचल के बारे में काफी कुछ लिख सकता हूं अपने हिसाब से, ठीक है ना, कि वहाँ काफी ज्यादा भ्रमण स्थल है, वो देवभूमि, वहां पर काफी ज्यादा, तो है ना, कुछ अच्छा, जो भी अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा एक्सप्रेशन हो सकता है डिफर हो और आपका डिफर हो, भले मीनिंग सेम जाए, वी आर प्रेजिंग दैट हिमाचल इज ए गुड स्टेट। तो इसीलिए हमसे ध्यान रखना, कॉपीराइट इज ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया, ठीक है ना। एक ही आइडिया पे 10 लोग अलग अलग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो कॉपीराइट किसको मिलता है आपको, तो कॉपीराइट किसको मिलता है, एक्सप्रेशन पे, आइडिया पे नहीं मिलता, ध्यान रखना। और आजकल कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है अपना सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सर हमने ये मोबाइल ऐप बनाया है या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किया है ताकि इसमें इससे फोटोग्राफ और क्लियर आए, या फिर और कोई फीचर्स लगा के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सारे सॉफ्टवेयर जो आप कोड, जो उसका जो कोड लिखते हो, कोड का सीक्वेंस होता है, वो आपका आता है कॉपीराइट, ठीक है ना। तो ये सेकंड टाइप ऑफ, एक तो आपका मैंने ट्रेडमार्क डिस्कस किया, मैंने आपको सेकंड डिस्कस किया कॉपीराइट। तो जो भी बच्चे सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं अपना, उनका कोड का जो सीक्वेंस है वो किसमें रजिस्टर होगा, कॉपीराइट, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब नाउ यू कम टू डिजाइन। कोई भी स्टूडेंट एक अपना अनम्यूट कर ले। सामने आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, The industrial design. नहीं, जो मैंने इमेजेस लगा रखे हैं वो क्या दिख रहे हैं आपको, The microscope. माइक्रोस्कोप। अब ये तीनों माइक्रोस्कोप की मेरे को रिजोल्यूशन तो बराबर ही लग रहा है, 100x का रिजोल्यूशन इनका तीनों का। अब मुझे बताइए डिफरेंस क्या, फंक्शनलिटी तो तीनों की बराबर है, सेम फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं, अब डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है मुझे, कोई एनी स्टूडेंट? Appearance, sir. Design, sir. Structure. स्ट्रक्चर, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं इसको और ज्यादा इसको और क्लियर करूं तो शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसका शेप डिफर है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफर है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर इनोवेशन किस चीज, इसका मतलब इनोवेशन किस चीज में, यहाँ पर फंक्शनलिटी में तो कोई इनोवेशन नहीं है, किसमें इनोवेशन है इसमें, स्ट्रक्चर ऑब्लिक शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां पर फंक्शनलिटी सेम होती है और डिफरेंस केवल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो वहां पर हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन और डिजाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग कई बार ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जिसमें फंक्शनलिटी तो इंप्रूव नहीं होती, लेकिन उसका शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन इंप्रूव होता है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, डिजाइन में। अब आप लोग बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या है। अब अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है जो 10-12 साल का है, 15 साल का है, या 12-13 ईयर का है, आप उसको स्टेशनरी शॉप पे लेके जाइए, उससे बोलिए इन दोनों में से कोई सा भी कंपास ले लीजिए, तो कौन सा, आपको क्या लगता है कौन से वाले को प्रेफर करेगा वो, लेफ्ट वाले को। क्यों? क्योंकि इसका शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा अट्रैक्टिंग है, अपीलिंग है। तो
तो ये तो लेकिन ये एस्पेक्ट भी एक आईपीआर का एस्पेक्ट है, दिस इज आल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट कैन बी रजिस्टर्ड। अब ये क्या स्लाइड दिख रही है आपको? डस्टबिन। इट्स अ डस्टबिन। तो इस डस्टबिन में भी देखिए आप, फंक्शन इज सेम बट द शेप इज डिफरेंट। तो जहां पर शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन जहां से बात आएगी हम लोग डिजाइन की बात करेंगे। हाँ ये बताइए, कौन सी कंपनी का वाटर बोतल है? किनली। किनले का, राइट। तो यहाँ पर कहीं भी किनले तो नहीं लिख रहा, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? डिजाइन स्ट्रक्चर से। डिजाइन इस इट मींस फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइन यू आर डिजाइन हैज सम वैल्यू, तभी तो आपने इसको कोरिलेट किया कि दिस पर्टिकुलर डिजाइन बिलोंग टू किनले। तो शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईपी, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई नया शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन डेवलप करें जिसको आपको लगता है मार्केट वैल्यू है, तो यू शुड प्रोटेक्ट इट थ्रू डिजाइन रजिस्ट्रेशन। और इट इज और जो भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है उसमें आपको सारे व्यूज आपको उस आर्टिकल के देने पड़ेंगे। It may be front view, it may be left side view, it may be right side view, it may be back side view, it may be perspective, it may be top view, और if required bottom view also. तो जो भी आपका आर्टिकल का व्यू बनता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, then only the design application will be considered. तो मैंने अभी आपको 3 तरह के राइट्स बताए अभी तक। one is the patent right, one is the trademark, one is the copyright, one is the design. तो ट्रेडमार्क मैंने आपको बताया any logo, text, any picture, any color combination which can yes, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए अगर कोई ठीक है। तो any of these color combination may come under the trademark which is identifying goods or product, okay, product or service। फिर आपका मैंने कॉपीराइट बताया, कोई आप लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, जो इस तरह के जो नेचर ऑफ वर्क होते हैं वो आपके कॉपीराइट में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन की यूनिकनेस, वो आपके डिजाइन में आती है। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कंसेप्ट बताऊं जिसको पेटेंट का बता रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। जैसे आप लोग काफी लोग पीटर इंग्लैंड के जो गारमेंट्स पहनते हैं, तो पीटर इंग्लैंड की गारमेंट्स अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी आप फेसबुक पे जाके कहीं जाके देखना, पीटर इंग्लैंड नीम तुलसी पेटेंट। तो जो आप जो फैब्रिक पहन रहे हो उसमें भी आपका पेटेंट का एक फॉर्मूला छुपा हुआ है। जो इस फैब्रिक को जो डाई करने की जो टेक्निक है, जो नोवेल प्रोसेस ऑफ डाइंग एंड प्रोसेसिंग अ नेचुरल टेक्सटाइल प्रोडक्ट यूजिंग नेचुरल डाइज अलोंगसाइड नीम एंड तुलसी, ये भी आपका पेटेंट है कि आपका प्रोडक्ट कैसे इसमें डाई लगा हुआ है। जो आपके कपड़े में जो डाइंग करते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन डाई करते हैं, उसके लिए भी पेटेंट ले रखा है इन्होंने। तो पेटेंट एक ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे सर पेटेंट इज रॉकेट साइंस, आपके आसपास बहुत सारी चीजें पेटेंट से रिलेटेड है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी आपको? ठीक है, तो स्टंप्स। तो ये स्टंप्स आप लोग काफी सारे मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं आप लोग, तो आप देखते हैं कि पहले इस तरह के स्टंप्स आते थे और देयर वाज अ प्रॉब्लम कि जब भी रन आउट होता था इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट कि रन आउट प्रॉपर हुआ है, डिसीजन कैसे दे एम्पायर। तो उसका सॉल्यूशन अभी हमको इस फॉर्म में मिल गया है जिसको बोलते हैं एलईडी स्टंप्स। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, ये आपका बहुत बड़ा पेटेंट है आपका। और ये इसको किसने किया है? ब्रॉन्टे एकरमैन, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट काफी खेला जाता है, तो उन्होंने एक ये टेक्निक डेवलप करी और आज इस टेक्निक के बदौलत ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी। हर मैच में, चाहे आईपीएल का मैच हो, चाहे आपका लीग कोई वर्ल्ड कप मैच हो, चाहे T20 मैच हो, जो भी मैचेस होते हैं, डॉक्टर ब्रॉन्टे एकरमैन से परमिशन लेके स्टंप्स उनसे लिए जाते हैं और उसकी रॉयल्टी दी जाती है पर मैच की। तो इतना पावर है पेटेंट का। अगर आपके पास आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी आती है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी स्टंप्स की, इन्होंने ब्रॉन्टे एकरमैन ने एलईडी स्टंप बता दिए और सिंपल सी टेक्निक है कि जैसे दोनों बेल्स आपके हवा में होंगे वो एलईडी ब्लिंक कर जाएगी, ग्लो कर जाएगी, और आप उस मोमेंट को जब वो ग्लो करती है उससे बैट्समैन की पोजीशन चेक कर सकते, कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं वेदर आउट और रन आउट। तो इतना अच्छा आपका टेक्निक्स आ चुके हैं आजकल, और इस छोटी सी चीज पे भी एक पेटेंट है जो जिसमें crores of rupees he is earning on monthly basis।
तो ये आपका पेटेंट का एक टेस्ट होता है आपका। अब नाउ आई कम टू सम अनदर एग्जांपल। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ ठीक है। अब देखिए आप, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग सोचे कि माइक्रोसॉफ्ट ही पेटेंट कर सकता है, एक आईबीएम ही पेटेंट कर, आप लोग भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं कि रॉकेट साइंस को पेटेंट, एक सिंपल इनोवेशन को भी पेटेंट आपको मिल सकता है। ये पोर्ट देखिए, आप पोर्ट देख रहे हैं आप लोग, ये डबल लेड पोर्ट है। अब आप देखिए यहाँ पर आउटर क्ले पोर्ट है और एक इनर पोर्ट है, और बीच में सैंड आपने इन दोनों पोर्ट के बीच में जो जगह है वहां पर सैंड से भर रखा है। अब इसके ऊपर अगर आप पानी, ये पूरी सैंड को पानी से भर देते हैं और ऊपर गीला कपड़ा डैम क्लॉथ लगा दे, वेट क्लॉथ लगा देते हैं, और इसके अंदर जो भी आप सब्जी फल वगैरह रखेंगे तो वो 4-5 दिन तक खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने ये 2 लेयर पोर्ट यूज किया और सैंड यूज करी और पानी डाल दिया, तो जो भी अंदर की जो भी गर्मी है, हीट, दैट विल ट्रांसफर थ्रू इवोपरेशन टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और अंदर एक ठंडक क्रिएट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका फल सब्जी खराब नहीं होगा। अब ये देखो कितना बड़ा इनोवेशन लग रहा है आपको यहाँ से, लेकिन आप देखोगे तो इतना सिंपल से इनोवेशन। Sir, excuse me, somebody wants to ask the question, probably Prabal from UIT, he's raising hand since long. Okay, okay. Ma'am, he can ask. He can answer. Okay. Prabal, you want to ask? You are raising the hand. Or shall we go ahead? Anybody wants to ask the question or shall we go ahead? You can go ahead, sir. Okay, okay. Ma'am, in last we can take all the questions in one go. Yeah, okay? yeah. That will more convenient. So आपको इस एंगल से देखना है कि इनोवेशंस करते हो तो ये नहीं आप लिमिट बांध ले कि सर मेरे पास तो ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर नहीं है या फिर पास तो पर्टिकुलर सेंसर अवेलेबल नहीं है। आप छोटे छोटे इनोवेशंस भी करके अपना एक पेटेंट डेवलप कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को। अब आप एक एग्जांपल ही देखिए आप, हम लोग तो चलो काफी, अभी तो इंडिया काफी ग्रो कर रहा है अच्छे से, काफी लोगों के पास फैसिलिटीज आ चुकी है। अभी भी कुछ कंट्रीज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इन्होंने एक कैंटन ली है, इन्होंने देखा कि एक गुड़िया है छोटी सी, वो एक जो शूज पहन रखा है, उसके पेरेंट्स का शूज पहन के चर्च में जा रही थी या कहीं जो मंदिर पूजा वगैरह जो भी अपना करने जा रही थी वो जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि भाई जो शूज था काफी छोटा था, उसकी शायद छोटी बहन का होगा या किसी का होगा, आई डोंट नो। तो उन्होंने ये चीज देखी कि मैं ऐसा शू बनाऊं जो छोटा भी हो सके बड़ा भी हो सके। तो उन्होंने एक फ्लेक्सिबल सैंडल शू स्ट्रक्चर डेवलप किया और 3 जगह उन्होंने पॉइंट्स दे दिए, इसके 3 जगह रिवेट्स दे दिए। तो जहां से अगर आपको पीछे से छोटा करना है, आगे से छोटा करना है, बीच से छोटा करना है, तीनों जगह से आप कंप्रेस और एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। तो एक ही शूज आपका जो घर में है उसको डिफरेंट पर्सन यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइम। तो ये छोटे छोटे इनोवेशन है, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा इनोवेशन, लेकिन ये भी एक पेटेंटेबल इनोवेशन। अभी ये देखिए आप, ये वाला इनोवेशन, ये कोई सत्यजीत करके किसी ने पुणे से किसी ने इसको किया है, तो इसको और मेक्स यूजिंग इंडियन स्टाइल टॉयलेट इजी। अब ये देखिए, कई बार आप लोग देखोगे कई जगह इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स होते हैं, तो काफी जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनके घुटनों में बड़ा दर्द होता है, या फिर इवन आजकल तो चूंकि लोग थोड़ा सा इतना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, तो बहुत सारे लोगों को इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसके लिए देखो कितना अच्छा इनोवेशन किया है कि वही उन्होंने जहां पर आपका जो पैर, आपका जो पूरा टोए, आपका जो तलवा आपका पैर का जो टिकता है, उसका एक एंगल दे दिया ताकि आपको बहुत ज्यादा अपने टोइज पे या फिर घुटनों पे ज्यादा जोर नहीं देना। ठीक है, तो ये भी एक पेटेंटेबल इनोवेशन है कि आपने स्लोप दे दिया उसको, आपने जो फुट रेस्ट को एक स्लोप दे दिया पर्टिकुलर एंगल पे, ताकि ऑप्टिमम पोजीशन पे आदमी को एक सीटिंग उसका प्रॉपर हो जाए और उसको ज्यादा पेन भी ना हो घुटनों में। तो ये छोटे छोटे जो इनोवेशन है आपके, वो भी पेटेंट हो सकते हैं। तो पेटेंट बेसिकली क्या है? पेटेंट बेसिकली एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। डिजाइन तो आपने देखा कि चलो माइक्रोस्कोप का डिजाइन चेंज कर दिया, बाकी काम वही कर रहा है। आपने डस्टबिन का भी डिजाइन चेंज कर दिया, आपने कंपास का भी डिजाइन चेंज कर लिया, लेकिन आपने फंक्शनलिटी चेंज नहीं करी, फंक्शनलिटी सेम है। लेकिन पेटेंट में क्या कर रहे हैं आप? अब जैसे टॉयलेट में क्या किया आपने, जैसे आपने इसको चेंज किया, इसका शेप, ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर आपको एक रिलीफ मिला कि हाँ जो भी इस पे बैठ रहा है, जो भी इसको यूज कर रहा है, उसको कम अपने घुटनों पे कम जोर देना पड़ रहा है। जैसे शूज वाला था आपका, शूज वाले में क्या था आपका,
आपका शूज मल्टीपर्पज हो गया। इस तरह से आपका जो ऊपर जो मैंने बताया था आपको, ये जो आर्टिफिशियल फ्रीजर जो ये आपका हीट ट्रांसफर फ्रीजर, तो ये आपको क्या एडवांटेज दे रहा है कि आपकी सब्जियां लंबे समय तक खराब नहीं हो रही, आपके फल लंबे, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बिजली की जरूरत नहीं है। तो जहां पर गांव में जहां पर बिजली प्रॉपर नहीं आती, या फिर जहां अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर ये काफी यूजफुल है। तो पेटेंट में मैं जब भी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक इंप्रूवमेंट की, एक फंक्शनल इंप्रूवमेंट की, एक आउटकम की। लेकिन डिजाइन में मैं केवल क्या बात कर रहा हूँ कि एस्थेटिक सी कैसा अच्छा लगता है, हाउ इट इज लुकिंग लाइक। तो पेटेंट और डिजाइन में सबसे मेन डिफरेंस है उसका नेचर। पेटेंट इज फॉर एस्थेटिक नेचर, it is for beauty of the product, while patent is for functionality, for improvement in the functionality of the product. अब मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं आपको। क्या दिख रहा है आपको सामने? एनी स्टूडेंट? साइकिल। Yes, sir. Cycle stand. साइकिल विद स्टैंड। Cycle stand. Yes. साइकिल विद साइकिलिस्ट, बाइसाइकिल विद बाइसाइकिल स्टैंड। अब ये इस तेरे तरह पापा बाइसाइकिल, कर रहे हैं, फोन आ रहा, उठा कर भला। तो बाइसाइकिल विद बाइसाइकिल स्टैंड, ओके। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्टिंग बाइसाइकिल स्टैंड में, कि जितनी लेंथ तो पता बाइसाइकिल होगी उतनी आपको स्पेस पार्किंग के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन मैंने दिया है, हमने मतलब मैंने नहीं, जिस इन्वेंटर ने दिया है वो इस तरह से दिया है। इसको बोलते हैं वर्टिकल बाइसाइकिल पार्किंग स्टैंड। जैसे आप बाइसाइकिल को पार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको ये फेच करेगा इसके आगे वाले व्हील को, और इसको ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट कर देगा इसको, ठीक है ना, टू 90 डिग्री टू द ग्राउंड, है ना। तो क्या हो गया आपका वर्टिकल बाइसाइकिल स्टैंड। अब इसमें क्या बेनिफिट है आपका, स्पेस आपका काफी बच रहा है। तो एक आपको एक एडवांटेज मिला है एडिशनल स्पेस का एडवांटेज। तो ये आपका एक अच्छा इनोवेशन हो सकता है। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। सेल्फ लिफ्टिंग आयरन, ये आप लोगों ने देखा होगा। यहां पर आप देखिएगा 22A एंड 22B, इसको मैंने बोला है लेग, ठीक है ना, रिट्रैक्टेबल लेग, जिसको अपन अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा हो कई बार आप लोग कपड़े आप लोगों को घर पे प्रेस करने होते हैं, ठीक है। अब अर्जेंसी में किसी का मोबाइल फोन आ गया अर्जेंटली, ठीक है ना, या फिर कोई डोरबेल बजा दिया, कोई पैनिक सिचुएशन हो गई, तो आप तुरंत वहीं पर आयरन छोड़ के उस सिचुएशन को अटेंड करने के लिए जाएंगे। इस बीच में क्या होगा, आपका फैब्रिक खराब हो सकता है, क्योंकि सोल प्लेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए इन्वेंटर ने क्या किया, इसमें एक लेग स्ट्रक्चर लगा दिए नीचे सोल प्लेट पे। तो ये कब एक्टिवेट होकर बाहर निकलेंगे, जब आपका हाथ हैंडल से हट जाएगा और 2 या 3 सेकंड हो जाएंगे। तो जैसे आपको फोन आया किसी का अर्जेंट, और आपने या फिर आपने कोई डोरबेल पे गया और इसने नोटिस किया सेंसर ने कि आपका हाथ हैंडल से हट चुका है, 2 या 3 सेकंड वेट करेगा, 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ये आपके लेग्स नीचे की तरफ आ जाएंगे और आपके फैब्रिक और सोल प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी और उसका आपका फैब्रिक जलने से बच जाएगा। तो ये भी आपका एक पेटेंट है और एक इन्वेंशन है। लेकिन इसको कैसे एक्सप्रेस किया है, आई वांट वन वॉलंटियर टू रीड द क्लेम नंबर 1। कोई भी एक वॉलंटियर आ जाए और इसको एक बार पढ़े। He should read the slide. An iron compressing an electrically heated sole plate. A separation mechanism including at least one lifting leg for lifting bottom surface of heated sole plate away from a sporting surface. हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। A sensor disposed in said handle providing for control of said separation mechanism, wherein when said sensor detects the hand of the user, said sensor sends the signal to said separation mechanism to lower the iron by retracting said separation mechanism, and when the user releases said handle, said sensor signals said separation mechanism to raise the iron. तो ये बेसिकली जो मैंने आयरन की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जैसे आपका हाथ हैंडल से हटता है, तो मींस अगर जैसे आपका हैंडल से हाथ हटा, इसका मतलब और अगर आपका सोल प्लेट कपड़े पे है तो वो थोड़ी देर रहेगा तो जल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट के कारण। तो उसका क्लेम कैसे लिखा है, और वो क्या करेगा, उसको सेंसर डिटेक्ट करके कि भाई आपका हाथ हट गया, तो वो लेग्स मूवमेंट को बोलेगा कि आप नीचे आ जाइए, ताकि
कपड़े और सोल प्लेट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाए, डिस्टेंस क्रिएट हो जाए और कपड़ा जलने से बच जाए। लेकिन देखिए किस तरह से इसको क्लेम को एक्सप्लेन किया। देखिए आप, एन आयरन कंप्राइजिंग, एक आयरन जो अपनी जो प्रेस है उसको आयरन प्रेस कंप्राइजिंग एन इलेक्ट्रिकली हीटेड सोल प्लेट, जो नीचे जो सोल प्लेट है उसकी बात करिए, अ हैंडल, एक हैंडल की बात करिए, अ सेपरेशन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन लिफ्टिंग लेग। अब जो मैंने 2 लेग्स दिखाए थे आपको 22, एक मिनट देखिए आप, दिख रहा है आपको 22A एंड 22B? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. तो ये 22A एंड 22B को लेग बोला, तो एक कम से कम एक लेग होना चाहिए, 2 तो और बढ़िया है। तो ये 2 लेग हैं फॉर लिफ्टिंग अ बॉटम सरफेस ऑफ द शेड हीटेड सोल प्लेट अवे फ्रॉम द सपोर्टिंग सरफेस। जो आपका जो सोल प्लेट जनरली हम लोग कपड़े पे लगाते हैं उससे दूर करने के लिए एक लेग्स लगाए और एक सेंसर भी लगाया है। A sensor disposed in the shade handle, providing for the control of shade separation. When the shade sensor detect the hand of the user, सेंसर क्या करता है आपका, जैसे ही सेंसर सेंस करता है कि आपका हाथ हट गया है वहां से, तो वो क्या करेगा, लेग्स को बोलेगा भाई नीचे जाओ, आप नीचे चल जाओ ताकि कपड़े और सोल प्लेट में दूरी हो जाए और आपका जलने से बच जाए। और जैसे वो देखेगा कि भाई हाथ वापस लग गया है तो वो उसको ऊपर कर लेगा, तो लेग्स को वापस रिट्रैक्ट करके ऊपर ले जाएगा। तो ये कितना अच्छा आपका एक इनोवेशन है, बता, जिससे आपका कपड़ा बच सकता है जलने से, टू प्रोटेक्ट योर फैब्रिक। तो इस तरह के जो भी इनोवेशन है जिसकी कुछ यूटिलिटी है, जो अभी अब मेरे को प्रेस सुंदर थोड़ी लग रही है, इट इज नॉट एस्थेटिक, इट इज नॉट ब्यूटीफुल, आई एम कंसर्निंग अबाउट द फंक्शन, तो वहां पर मैं पेटेंट की बात करता हूँ। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल और लूंगा मैं आपका, वो थोड़ा सा क्योंकि टाइम थोड़ा सा जा रहा है हमारा। अगर आप लोग जिलेट मैक 3 रेजर अगर कुछ स्टूडेंट यूज करते हो तो मैं बता दूं, एक रेजर पे 57 पेटेंट्स है, 57, एक रेजर पे 57 पेटेंट्स। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, वैक्यूम चेंबर है, सिंगल पॉइंट कार्ट्राइज लोडिंग सिस्टम है, इंडिकेटर स्ट्रिप है इसका, पिवोट डिजाइन है इसका, 3 स्टेगर्ड ब्लेड इसका है, रबर काउंटर ग्रिप है, मैक 3 टेक्नोलॉजी। तो 7-8 पेटेंट तो ये है, बाकी टोटल 57 पेटेंट है एक रेजर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप कि एक प्रोडक्ट में मल्टीपल पेटेंट्स हो सकते हैं। फिर फर्स्ट टू फाइल सिस्टम, पेटेंट्स में सबसे बड़ी बात है कि जो पहले पेटेंट फाइल करता है उसको राइट मिलता है। तो यू कैन नॉट वेट के सर अब मैंने तो अपना इनोवेशन कर लिया है, अब मैं तो क्या थोड़ा सा, मेरे ब्रदर की मैरिज है बाहर, तो मैं 1 महीने के जा रहा हूँ, आके फाइल कर दूंगा। इन बिटवीन अगर किसी ने सेम पेटेंट फाइल कर दिया, सिमिलर पेटेंट, तो योर प्रायोरिटी इज लॉस्ट। तो आपको पेटेंट फाइल करते हुए थोड़ी जल्दी रखनी है, जैसे आप अपना आइडिया कंसेप्चुअलाइज करें प्रॉपर्ली तो आपको पेटेंट फाइल कर देना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। 1 सेकेंड, नाउ कम टू अनदर स्लाइड। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फिर जब भी आप पेटेंट फाइल करें, जब भी कोई इनोवेशन के लिए को पेटेंट के लिए सोचे, इनोवेशन या आईपीआर के लिए सोचे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने जो इनोवेशन किया है और पुराना जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, आपका इन्वेंशन क्यों एडवांटेजेस है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोसेस से, वो आपको कंपेयर करके रखना पड़ेगा आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग जेल पेन यूज करते हैं ना, तो पहले कुछ लोग फाउंटेन पेन यूज करते थे, अब जेल पेन, सब लोग जेल पेन यूज करते हैं, फाउंटेन पेन कोई यूज नहीं करता। तो जिसने भी जेल पेन जब डेवलप किया था तो उसने कैसे कंपेयर किया, वो देखो आप, जेल पेन uses viscous liquid, viscous gel, whereas the fountain pen uses a liquid ink. Gel pen में only one tip is there, while in fountain pen sharpening with the feeder. अब इसके कारण एडवांटेज क्या है, जेल पेन इज नॉट प्रोन टू लीकेज, इसमें लीकेज मिनिमल है, लेकिन फाउंटेन पेन में लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि यहाँ जेल विस्कस फॉर्म में है तो जेल पेन में लीकेज के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड, आप जो भी इन्वेंशन करें आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इससे पहले किस तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल है और मेरा प्रोडक्ट क्यों बेटर है, मेरा इन्वेंशन क्यों बेटर है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपका कुछ मैं 1-2 चीजें बताता हूं आपको। जो भी आप लोग डेवलप करें प्रोडक्ट या प्रोसेस, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप जब भी बात करें फंक्शन के फॉर्म में बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं ब्रश, तो आप बोलिए क्लीनिंग आर्टिकल,
इफ अगर मैं बोलता हूँ कैमरा तो आप बोलेंगे इमेज कैप्चरिंग यूनिट, अगर मैं बोलता हूँ पेन पेंसिल तो आप बोलेंगे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसा क्यों? राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए आपका पेन भी आ गया, आपका पेंसिल भी आ गया, आपका परमानेंट मार्कर भी आ गया, टेम्परेरी मार्कर भी आ गया, ठीक है ना, है ना, और कोई वैक्स कलर भी आ गए आपके, माने पेंसिल कलर्स भी आ गए। तो जब भी अगर आप फंक्शन के फॉर्म में बात करेंगे तो आपका एक क्लेम बड़ा होता है, आपका एम्बिट बड़ा होता है। लेकिन अगर आप केवल कैमरा बोल देंगे तो फिर सिंपल हो गया आपका। एक ब्रश बोल देंगे तो एक लिमिटेड, अब क्लीनिंग आर्टिकल तो ब्रश भी हो सकता है और दूसरा भी कुछ और तरीका क्लीनिंग आर्टिकल हो सकता है, एक वैक्यूम क्लीनर भी हो सकता है, ठीक है। तो try to means identify product as a function, not as a noun. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग बैटरी बोले या फिर आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आप लोग ट्रांजिस्टर की जगह ये भी यूज करते हैं सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस विद कंट्रोल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। फास्टिंग मींस नेल स्क्रू और रिवर्स के आप लोग फास्टिंग मींस यूज कर सकते हो वर्ड, है ना, बिकॉज फास्टिंग मींस में सारे तरह के ये सब चीजें आ गई, स्क्रूज वगैरह, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग ये क्लेम का। कोई रीड आउट कर सकता है इसको, इस स्लाइड को? Structure of claims, introductory phase, body of the claim, link that joins the two segments. Okay. Adaptive device comprising an input surface adapted to be locally exposed to pressure or pressure force. A sensor means disposed below the input surface for detecting the position of pressure. ठीक है, तो आपने पढ़ा a data input device. I am talking about the data input device which is comprising of, जहां पर क्या क्या है, एक इनपुट सरफेस है which is adapted to be locally exposed to pressure, जहां पर हम प्रेशर लगा सकते हैं उंगलियों से। आप एटीएम मशीन में जाते हो तो क्या करते हो, आप जो टाइप करते हो 1 2 3 4 जब भी आपको पासवर्ड जो भी होता होगा तो उस पर टाइप करते हो, उस पर प्रेशर लगाते हो तभी जाते हो वो क्लिक करता है ना, तो इसको लोकली एक्सपोज टू प्रेशर फोर्स कोमा और सेंसर मींस डिस्पोज बिलो द इनपुट सरफेस डिटेक्ट। तो आप अपना पासवर्ड टाइप करते हो ABCD, तो सेंस कर रहा है आपको मशीन के कहां पर टाइप किया। अगर वो ABCD सही टाइप किया तो वो आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए अलाउ करेगा, वरना नहीं करेगा। तो एक सेंसर तो है ना जिससे पता चला कि आपने क्या टाइप किया और सही किया गलत किया, ठीक है। तो ये एक मेरा क्लेम है सिंपल सा। अब मैं इसको, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो आप, राइट, एग्री करते हैं आप? कोई एनी स्टूडेंट, ये चारों एग्जांपल हो सकते हैं उस अबाव के जो मैंने क्लेम लिखा? यस सर। आपका मोबाइल फोन भी आपने यही करते हैं ना, आप लोग क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, फिर व्हाट्सएप खुल जाता है, फिर टाइप करते हैं, तो सेंस कर रहा है ना आपकी पोजीशन, आपकी फिंगर्स की पोजीशन, ये कहाँ टाइप किया आपने। इस तरह से आप लोग आजकल जो आपके जो टच स्क्रीन लैपटॉप वगैरह उस पर भी आप लोग इस तरह से करते हैं। आपके माउस में भी क्या करते हैं, आप लोग क्लिक करते हैं तो आइडेंटिफाई करते हैं, लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इस तरह से आपका कीबोर्ड भी इस तरह से करते हैं। तो मैंने कहीं नहीं लिखा यहाँ पर, देखिए कहीं मैंने कीबोर्ड नहीं लिखा, कहीं मैंने माउस नहीं लिखा, कहीं मैंने टच स्क्रीन नहीं लिखा। तो जब भी, इसलिए मैं कहता हूँ क्लेम में जब भी आप करें तो फंक्शन के रूप में बात करेंगे तो आपका क्लेम ब्रॉड होगा और ज्यादा से ज्यादा आपकी डिवाइसेस कवर होगी। तो ये जब भी आप इनोवेशन करें तो ये ट्रिक, ये आपका एक स्टाइल होता है कैसे आप अपने इनोवेशन को प्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई आपके जो इतने सेमिनार करवा रहे हैं लोग, ये क्यों करवा रहे हैं, इनको कोई मतलब इस तरह को नहीं कि इट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ सेमिनार। ये चाहते हैं आप लोग पता, लीगल फॉर्मेलिटीज का पता चले आपको कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, एक तो एग्जांपल और देता हूं, फिर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं पढ़ता हूं इसको। अ डिवाइस हैविंग प्लुरलिटी ऑफ सर्किट्स ड्रिवन बाय पावर सोर्स कंप्राइजिंग। अब यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या है कि डिवाइस में हैज मोर देन वन सर्किट, ईच सर्किट ड्रिवन बाय पावर सोर्स, या फिर अ डिवाइस इंक्लूड्स मोर देन वन सर्किट एंड द डिवाइस इज ड्रिवन बाय पावर सोर्स। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे अच्छा सेंटेंस क्या है, देखिए आप, अ डिवाइस हैविंग प्लुरलिटी ऑफ सर्किट्स कोमा ईच सर्किट ड्रिवन बाय पावर सोर्स। यहाँ पर पता चला कि एक डिवाइस में सपोज 10 सर्किट है, प्लुरलिटी ऑफ सर्किट मोर देन वन,
तो एक डिवाइस में 10 सर्किट है और हर सर्किट एक एक पावर सोर्स से ड्रिवन है। तो ये क्लैरिटी होगी यहाँ पर। तो जो भी आप क्लेम लिखें, जो भी आप वर्डिंग लिखें, उसमें ध्यान रखें क्लैरिटी आनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि उसकी दो मीनिंग निकले, एम्बिग्यूटी इज नॉट अलाउड। टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, फिर मैं एक दो एग्जांपल लूंगा। अपर्णा मैम, कैन आई स्केल अप टू 10 more minutes? Yes sir, sure, sure. क्योंकि एक दो अच्छे एग्जांपल्स हैं। कोई नहीं, I just want कोई to- नहीं, प्लीज। अब स्टूडेंट्स पूरा फोकस करिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्लीज। देखिए मैंने क्लेम लिखा है यहाँ पर, a method of communication through a mobile communication device comprises an antenna, a sensor. अब देखिए यहाँ पर, the method of communication is claimed in claim 1 wherein the antenna set comprises. Please, Participants, kindly mute yourself. All the participants are requested to mute themselves, please. Sir, please continue, sir. अब मैंने क्लेम नंबर 1 में एंटीना वर्ड यूज किया है और क्लेम नंबर 2 में एंटीना सेट। ऊपर यूज किया अ सेंसर, नीचे बोला है सेंसिंग डिवाइस। ऊपर लिखा है मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस, नीचे लिखा है मोबाइल फोन। तो इन चीजों को अवॉइड करना है हमको। अगर इफ आई एम यूजिंग एंटीना देन आई शुड यूज एंटीना थ्रू आउट द स्पेसिफिकेशन। If I am using a sensor, then I should use a sensor throughout the specification. If I am using a mobile communication device, then I should use a mobile communication device throughout the specification. कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर तो लिख दिया एंटीना, नीचे लिख दिया एंटीना सेट, ऊपर लिख दिया मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस, नीचे लिख दिया मोबाइल फोन। नो, ये चीज स्पेसिफिकेशन में अलाउड नहीं है। इट में क्रिएटेड डबल मीनिंग। तो इसको अवॉइड करना है आपको। सेम वर्ड को रिपीटेडली यूज करना है सेम सेंस में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने AND आर्टिकल यूज कर रहे हैं आप लोगों ने, तो यहाँ पर भी सेम रूल आपका फॉलो करना पड़ेगा आपको AND का। अगर किसी भी कंपोनेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करें तो आप AN यूज करेंगे। अगर उसको सेकंड टाइम पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको द बोलेंगे। एक एग्जांपल लीजिए आप। अ कम्युनिकेशन डिवाइस कंप्राइजिंग एन एंटीना सेट, अ सेंसर कनेक्टेड टू डैश डिश। यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन डिवाइस को फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, एंटीना सेट को फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, सेंसर को फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। तो सब जगह मैंने क्या लिखा है, AN और A। लेकिन देखिए आप, द कम्युनिकेशन डिवाइस अकॉर्डिंग टू क्लेम 1। अब यहाँ कम्युनिकेशन डिवाइस में रीसाइट कर रहा हूँ, तो क्योंकि एक बार डिस्कस हो चुका कम्युनिकेशन डिवाइस क्लेम में 1 में, तो यहाँ मैंने द यूज किया। द कम्युनिकेशन डिवाइस अकॉर्डिंग टू क्लेम 1 वेर इन द एंटीना सेट। क्योंकि एंटीना सेट दोबारा आ गया तो द कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लेम 1 के एंटीना सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्राइजेस ए कंडक्टिव एलिमेंट। अब कंडक्टिव एलिमेंट फर्स्ट टाइम तो अ कंडक्टिव एलिमेंट। अब क्लेम नंबर 3 में जाइए, द कंडक्टिव एलिमेंट अकॉर्डिंग टू क्लेम 2 इंक्लूड्स अ मेटल। तो जहां जहां रिपीट हो रहा है वहां द, और जहां फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस है तो अ। फिर देखिए, द मेटल इन कंडक्टिव एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्लेम 4 इज सेलेक्टेड फ्रॉम गोल्ड, कॉपर और प्लेटिनम। तो जहां पर भी उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को रिपीट कर रहा हूं तो द यूज कर रहा हूं, और जब फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं तो ए करता हूं। तो AND का जो सिंपल जो ग्रामेटिकल जो आपका जो सीक्वेंस होता है वो यहाँ भी आपको फॉलो करना है। अब हम लोग 2-3 एग्जांपल लेके वाइंड अप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आई थिंक दैट विल बी वेरी मोटिवेटिंग टू यू। हाँ, अब एक कोई सा भी स्टूडेंट आके एक बार इसको पढ़े, ध्यान से पढ़े प्लीज। Plain examples. We claim a washing machine comprising a drum section 10, a motor 20, a temperature sensor 30, a water inlet 40, a water outlet 50, a weight sensor 60. The washing machine 100 as claimed in claim 1, wherein the drum section 10 is made of metal and has cylindrical shape. The washing machine 100 as claimed in claim 1, wherein the motor 20 is servo motor. The washing machine 100 as claimed in claim 1, wherein water inlet 40 has tabular shape. हाँ, परफेक्ट। तो बेसिकली आप देखिए, मैंने वॉशिंग मशीन को पूरे को 100 बोल दिया, नंबर दे दिया उस वॉशिंग मशीन को। इट्स जैसे हम लोग ड्राइंग में समझाते हैं ना, तो हम लोग उसको नंबर देते हैं कि 100 इज द वॉशिंग मशीन। फिर जो ड्रम सेक्शन को नंबर 10 दे दिया, मोटर को नंबर 20 दे दिया। वहां मोटर की जगह मैंने मोटर नहीं लिख के हमने क्या किया, 20 लिख दिया। टेम्परेचर सेंसर की जगह हमने 30 लिख दिया, क्योंकि पेटेंट जब भी आप ड्राइंग देते हैं तो उसको एक नंबर देते हैं हर पार्ट को, कि 10, 20, 30 व्हाटएवर, एक सीक्वेंस रैंडम लिख दे सकते हैं आप। तो अब देखिए आप, मेरा क्लेम नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लेम में मैंने क्या किया, पूरी वॉशिंग मशीन को कवर किया और उसके अंदर सारे कंपोनेंट को कवर कर लिया।
ड्रम, मोटर, टेम्परेचर सेंसर, वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, वेट सेंसर, सबको इंक्लूड कर लिया क्लेम नंबर 1। अब जब क्लेम नंबर 2 डिपेंडेंट क्लेम में जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टराइज कर रहा हूँ कि ड्रम सेक्शन किससे बना है, मेटल से बना है, उसका शेप कैसा, सिलेंड्रिकल है। फिर क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ मोटर क्या है, सर्वो मोटर है। फिर मैं कह रहा हूँ कि वाटर इनलेट क्या है, जो ऐसा वाटर इनलेट जिसका ट्यूबुलर शेप। तो क्लेम में क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लेम जो क्लेम नंबर 1 में तो सारा मेन सारे कंपोनेंट्स लिख देते हैं, फिर आप डिपेंडेंट क्लेम को कैरेक्टराइज करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ताकि आपका पेटेंट डेफिनेट हो जाए। वरना पता चला कि आपका मशीन तो कैसी भी हो सकती है, ड्रम आपका कैसा भी हो सकता है, मेटल से बन सकता है, नॉन मेटल से बन सकता है, वुड से बन सकता है, ठीक है, शेप सिलेंड्रिकल की जगह कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो आपको अपने पेटेंट को डेफिनेट करने के लिए डिपेंडेंट क्लेम में कैरेक्टराइज करना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर एक और एग्जांपल लीजिए आप। आपको ड्राइंग दिख रही है, आर यू एबल टू सी द ड्राइंग ऑफ द शू? Yes, it is visible. Yes, sir. अब देखिए आप, इसमें मैंने ड्राइंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक शूज को, मैंने इसको शू नहीं बोल रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ एक तरह से एक फुटवेयर बोलता हूँ, सब कुछ। अब मैं इसको, एक तो इसका सोल पोर्शन है जो नीचे वाला तलवा होता है वो होता है, एक डिटेचेबल मीन जो उसको हम लोग लेसेज या फीते या फिर वेलक्रो बोलते हैं, वो एक हिस्सा हो गया आपका। एक लेफ्ट साइड का हिस्सा हो गया, राइट साइड का हिस्सा हो गया। देखिए आप, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, ठीक है। तो एक शूज को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्लेम, an athletic shoe comprising a left upper portion, a right upper portion, a sole portion integrally connected to said left portion to the said right portion, and means for detachably fastening said left upper portion to the said right portion. तो ये मैंने शूज को समझा दिया कि मैंने लेफ्ट पोर्शन भी है, राइट पोर्शन भी है, सोल पोर्शन भी है, और जो 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 अपर पोर्शन से लेफ्ट और राइट वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और दूर हो जाते हैं, कैसे, थ्रू डिटेचेबल फास्टिंग, जो फीते जिनको हम लोग लेसेज या फीते बोलते हैं, तो उनको टाइट कर दिया तो पास आ गए, उनको लूज कर दिया दूर चल गए, या वेलक्रो को लगा दिया तो पास आ गए, वेलक्रो को खोल दिया तो बड़े हो गए। तो ये क्लेम का एक स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ अलग अलग एग्जांपल्स हैं, देखिए आप लोग कुछ मैकेनिकल के बच्चे होंगे, तो जैसे कि आजकल आपने देखा होगा घर में जो गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता है कि गैस का नॉब तो चालू है और गैस पास भी हो रही है उसमें से, लेकिन बर्नर से गैस बर्न नहीं कर रहा, तो गैस वेस्ट हो रही है और गैस का कंसंट्रेशन किचन में बढ़ रहा है, तो कभी हादसा भी हो सकता है। तो ये इन्होंने इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया है, ये स्लाइड में आपसे शेयर भी कर दूंगा, है ना। तो इसमें इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया है कि आपका जो नॉब है उसको अगर लगता है कि आपका गैस पास हो रहा है वहां से उस ट्यूब से और बर्नर का टेम्परेचर कम है, अगर बर्नर का टेम्परेचर कम है इसका मतलब गैस तो पास हो रही है, बर्नर जल नहीं रहा, तो वो उसको क्या करेगा, रिट्रेट करके उसको बंद कर देगा। लेकिन अगर वो चेक करता है सेंसर कि नहीं बर्नर का टेम्परेचर भी हाई है और गैस भी पास हो रही है, इट मींस गैस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो लेच को पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, उसकी नॉब की पोजीशन। तो इस तरह के छोटे छोटे इन्वेंशन से आपके जो सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं, और आप यू आर आल्सो सेटिस्फाइड कि आई एम गिविंग समथिंग गुड व्हिच इज हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द सोसाइटी इन वेरियस वेज, ठीक है ना। तो इस तरह के काफी सारे एग्जांपल्स हैं। आप लोग काफी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो कई बार स्मार्टफोन गिर जाता है तो इसकी स्क्रीन टूट जाती है और काफी कॉस्टली आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने अलग अलग अपने पेटेंट डेवलप किए हैं। तो एक पेटेंट तो आपका कहता है कि वो आपका एक्सिस को, ठीक है ना, आपकी जो इम्पैक्ट है वो इंश्योर करेगा कि सरफेस पे ही हो, ठीक है ना। तो उसके अंदर इस तरह का सेंसर लगाया हुआ कि उसकी जो लास्ट पोजीशन होगी वो आपकी एज पे जाके ग्राउंड पे टकराएगा, तो आपकी स्क्रीन टूटने से बच जाएगी। ये एक एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल आपका ये वाला है, आपका जिसको बोला है इन्होंने बेसिकली, इसको इन्होंने बोला है वर्ड, देखिए आपने, प्रोपल। तो प्रोपल मतलब एक तरह से प्रोपल्जन एलिमेंट्स होते हैं, जो जैसे अपना होता है ना गाड़ी के अंदर आपके एयरबैग्स होते हैं, उस तरह के प्रोपल्जन एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे हाइट से गिरेगा आपको मोबाइल फोन, तो प्रोपल्जन एलिमेंट्स बाहर निकल जाएंगे, उसके अंदर हवा बढ़ जाएगी और आपकी इंपैक्ट किससे होगा, आपका उनसे हवा के गुब्बारों से, तो आपका मोबाइल बच जाएगा स्क्रीन टूटने से। तो प्रोपल्जन एलिमेंट्स लगा के अपने मोबाइल को बचा सकते हैं। तो ये भी एक इन्वेंशन है। तो डिफरेंट इन्वेंशन है, डिफरेंट तरह का प्रोटेक्शन है, डिफरेंट डिजाइन प्रोटेक्शन लगे, पेटेंट प्रोटेक्शन लगे, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन लगे, कॉपीराइट प्रोटेक्शन लगे। लेकिन आपको उसके लिए इनोवेट करना पड़ेगा, उसकी पेटेंट ऑफिस की लैंग्वेज को ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे एक्सप्रेशन देना है उसको, कैसे समझाना है उसको, कैसे बैकग्राउंड समझाना है, कैसे टाइटल देना है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट देना है। तो ये करके आप अपना इनोवेशन का थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर सकते हैं।
है ना। तो 1 आवर में मुझे लगता है एक ब्रीफ मैंने आपको एक So you are not audible, sir. Vikas sir. You are not audible, Vikas ji. Hello. Hello. Vikas ji, you are not audible. Hello. Madhu ma'am, Ranjit sir connection गया क्या सर का? Should I ring him? It is connected. No, ma'am. Okay. Ma'am, he is connected, ma'am, but he's not Okay, okay. audible. I guess some Okay. network issue is there. Yeah. At his end. डिले सम इशू। Hello. हाँ मैम, आवाज आ रही है आपको? Yes, जी, yes, अब आ रहा sir. है, sir. Now Now you. okay, sir. Yes. तो मेरा एक Again, not audible, please. Hello. हाँ मैम, अभी ठीक है? Yes. हाँ, तो नाउ हम लोगों को ये मैंने बस एक अब आई थिंक अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बच्चों से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Okay. Madhu, you can announce, please. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, participants, if you have any queries, you can ask right now. Any kind of query, if you are having in your mind, you can ask. The session is open for all. Please ask your queries. इन्वेंशंस और इनोवेशंस का सर पेटेंट हो सकता है, पर डिस्कवरीज का सकता है क्या? देखो डिस्कवरी का कोई आवाज आ रही है आपको प्लीज? यस सर। हाँ डिस्कवरी इज नॉट पेटेंटेबल। डिस्कवरी में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आप अभी आपकी लोकेशन सपोज कीजिए पंचकुला में है। अब पंचकुला में आपने थोड़ा सा एक्सकेवेशन किया, पता चला वहाँ पर्टिकुलर तरह का मेटल मिला आपको, तो वो दैट यू हैव नॉट इन्वेंटेड, यू हैव डिस्कवर्ड व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो आपने जो एग्जिस्टिंग चीज को अनकवर किया है तो उसके लिए कोई पेटेंट नहीं है। लेकिन प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग, जैसे मार्बल है तो मार्बल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। अब उसको अगर आपको कहीं मिलता है तो मार्बल पेटेंट नहीं कर सकते आप, दिस इज डिस्कवरी। लेकिन उस मार्बल को कैसे पॉलिश करना है ताकि वो ज्यादा यूजफुल हो सके, वो आपका पेटेंट हो सकता है। प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग द मार्बल में भी पेटेंट है। Any other query? Sir, Am I audible? Hello. Good afternoon, sir. Yes. Sir, myself, Dr. Raghavendra Patilar from Global Institute of Technology. Okay, sir. Sir, just I want to know that the teaching methodology also the patentable or the copyright we can take in the teaching methodology. If I am taking the class and teaching the particular topic to the students that are available in the books also, teaching methodology can be patentable. देखिए जो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कीम्स, आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ओके, ये जो इस तरह की जो चीजें वो सेक्शन 3 में बार्ड है फॉर पेटेंट, लेकिन ओनली भी कॉपीराइटेड, या तो बिजनेस मेथड है या एक तरीका है काम करने का, ऑर्गेनाइजिंग अ थिंग, वो पेटेंट के बाहर है। उसको आप केवल कॉपीराइट ही कर सकते हो, क्योंकि उसमें इन्वेंटिव स्टेप कैसे लेके आओगे आप, या तो कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स हो एजुकेशन देने की, जिसमें कर पाओ कि किसी बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या उसका आई कांटेक्ट कितना अच्छा जा रहा है, वो चीजें तो फिर भी आप पेटेंट कर सकते हो। लेकिन एक जनरल टेक्निक कि भाई एक शॉर्टकट्स वगैरह बनाना, वो सब करना, तो वो पेटेंट के बाहर है, उसमें केवल आप कॉपीराइट। Thank you, sir. Thank you very much. हेलो। हाँ जी कपिल सर। हाँ जी कपिल सर, you kindly unmute yourself. Kapil ji, unmute yourself. जी I think audible. Yes sir. विकास जी, आई एम डॉक्टर कपिल भट्ट फ्रॉम HPST शिमला। एक चीज आपसे पूछना चाह रहे थे, जैसे वाटर का, जैसे कुछ हम एक काम कर रहे थे वाटर के रिगार्डिंग, जिसमें वाटर का कुछ मैनेजमेंट है, कुछ ट्रीटमेंट उसका है, हम कर रहे थे। तो
उसके हमने कुछ पैरामीटर्स जो है वो वाटर के एनालाइज किए थे। जैसे वाटर की कंडक्टिविटी है या वाटर की टर्बिडिटी है, पीएच वैल्यू है, तो उसको हम जो है मोबाइल फोन पे हम चेक कर सकते हैं, मतलब ऐसा हमने कुछ बनाया है। अच्छा, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से पेटेंट कहाँ से उसका हम फाइल कर सकें या कैसे कर सकते हैं, किस चीज को पेटेंट कराएं। नहीं देखो, आप उस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को आप सेटअप को पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि यू आर अच्छा, थ्रू द यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, ओके, you have developed a system wherein you are using a mobile application and you are checking the quality of the water, that is the turbidity, pH value, everything. यस, 5 पैरामीटर। उसकी काफी सारी वैल्यूज, उसके काफी सारे एडवांटेज हैं। जो पीएचईडी जो डिपार्टमेंट होता है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, वो उसको यूज कर सकता है। इवन अब हम घर में भी पानी पीते हैं तो उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका तो आप पूरा सिस्टम सर, इसका तो पूरा सिस्टम क्लेम हो सकता है प्रॉपर, जिसमें आप बताएंगे क्या क्या सेंसर यूज किए हैं, क्या क्या माइक्रो कंट्रोलर यूज किए हैं, कैसे डेटा को आप फेच कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यूज किस तरह से डिस्प्ले हो रही है ना, वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम ना है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, क्या एल्गोरिथम यूज कर रहे हो क्या, तो वो दैट इज प्रोसेस को पेटेंट करेंगे हम, प्रोसेस को पेटेंट करेंगे कि ये प्रोसेस है, राइट। उसको एक्चुअली इसको सिस्टम, सॉफ्टवेयर में इसको सिस्टम क्लेम बोलते हैं कि आपने जो सेटअप जो तैयार किया है, सेंसर नेटवर्क जो तैयार किया है, माइक्रो कंट्रोलर तैयार किया है, उस पूरे को सिस्टम बोलेंगे। प्लस प्रोसेस जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, टर्बिडिटी चेक कर रहा है, वो कैसे टर्बिडिटी चेक कर रहा है, पहले डेटा आ रहा है, फिर डेटा को कंपेयर कर रहा है, फिर इसको फर्दर एनालिसिस के लिए दूसरे स्टेप, तो उसको मेथड क्लेम बोलेंगे। तो सिस्टम और मेथड क्लेम इसमें लगेगा आपका, तो इट इज क्वाइट पेटेंटेबल सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। Sir, myself, Dr. Vinash from Maharshi Markandeeshwar University, Deemed University. Kindly put on your camera, sir. Yeah. So we wanted that you extend this session next time for patent filing process. What are various stages of patent filing process, and about filing, then awarding, and granting process. Then about the copyrights and including the technicalities of these copyrights and patents, so that it becomes more beneficial for the students from technical institutions. राइट। एक्चुअली सर आज क्या था, अपने को आईपीआर का ब्रॉड टॉपिक था ना, तो थोड़ा सा 1 आवर के हम मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कभी मौका लगता है तो 1 आवर का केवल पेटेंट फाइलिंग का सेशन ले सकते हैं, 1.5 आवर का। Sure sir, sure, we'll do that. उसमें क्या ड्राफ्टिंग कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, केवल वो डिस्कस होता है। Sure sir, we'll have it. इसमें मैडम ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि हम विकास जी की हेल्प ले लें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, पर्सनली भी अगर कोई उनसे पूछना चाहे, इफ इट पॉसिबल। विकास जी। यस। हाँ सर, हम लोग कंसल्टेंसी तो दे रहे हैं वैसे, मतलब अलग अलग इन्वेंटर्स को कंसल्टेंसी देते हैं, तो अगर हमसे अप्रोच करता है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प हिम। ओके, थैंक यू। Yes, any other query from any participant? Can go ahead, Madhu. Okay, ma'am. हेलो सर, क्या हम प्रोडक्ट की ही पेटेंट करवा सकते हैं या प्रोडक्ट की थ्योरी की भी पेटेंट करवा सकते हैं? नहीं, आप प्रोडक्ट का पेटेंट करा सकते हैं और उसके थ्योरी का नहीं होगा। थ्योरी तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा कि कैसे प्रोडक्ट काम कर रहा है, कैसे प्रोडक्ट बना है आपका। इट में भी केमिकल कंपोजिशन, इट में भी ए मैकेनिकल डिवाइस, ओके, इट में भी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो आप उस प्रोडक्ट का पेटेंट ले सकते हो उसकी कंपोनेंट को डिफाइन करके कि क्या क्या कंपोनेंट आपने उसको यूज किए हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। साथ में आप उसके प्रोसेस के भी कर सकते हो, प्रोसेस भी क्लेम कर सकते हो कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू अचीव द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी क्लेम कर सकते हो, प्रोसेस भी क्लेम कर सकते हो, प्रोडक्ट में प्रोसेस भी क्लेम कर सकते हो। तीनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन थ्योरी को तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलोगे, आप उसकी थ्योरी क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन फीचर आप उसकी कंपोनेंट की क्लेम करोगे, आप उसकी कैसे वर्किंग कर रहा है उसके लिए प्रोसेस क्लेम जाएगा आपका, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपका राइटअप कैसा है, क्या है, उसके फीचर्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या प्रोसेस क्लेम होगा सर। Okay, sir. Hello. Yes, sir. Sir, my question is that we are very interested to know all the steps after the publishing to the grant. What type of different question that will come by the controller of
patent of $1 examiners, Right, and how right. we have to defend the questions, how we have to present our answer with refer to the questions. सर इस टाइप का हमें सेशन मिल जाए तो बढ़िया रहेगा सर. हाँ, एक्चुअली आज जो इनका सेशन था मैडम का, जो था एक इंट्रोडक्शन सेशन था मेरे को लगता है, जिसमें सारे Yes sir, yes sir, वो I ताकि got sir. बच्चों को है ना। अब नेक्स्ट सेशन में क्या कर सकते हैं कभी, कि पेटेंट ग्रांटिंग के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, हियरिंग में क्या पूछा जाता है, Yes sir, yes sir, yes sir. रिटर्न सबमिशन में क्या दिया जाता है, ठीक है ना। That is my concern sir. उसके लिए सेपरेट, क्योंकि उसमें कैसा इट इज एटलीस्ट इट शुड बी 90 मिनट सेशन है ना। उसमें आपको कुछ केस स्टडी डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हमने Yes sir, yes sir. हाँ, वो कर सकते, दैट कैन बी डन सर। ठीक है, thank you sir, thank you. Madhu ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall we move forward, ma'am? Yes, please. Okay, ma'am. So thank you so much, sir, for such a wonderful and an informative session. I hope it will be very fruitful and encouraging for each one of us. I hope now the students will be able to differentiate between different terms like trademark, copyright, and patents. So thank you so much again, sir. Moving forward, I would like to invite Dr. Virat Khanna, Vice President, IIC MATE, to give